In the book of Genesis, chapter 15, verse 6, the word of God said something very beautiful. उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय और 6वें वाक्य में वचन में कुछ सुंदर लिखा हुआ है. It says, and Abraham believed in the Lord. लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया And the Lord counted him righteous because of his faith. और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, during these days of lockdown, ये लॉकडाउन के दिनों में if there is anything that each one of us are missing is basic belief in the Lord and in his word. हम विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर पर विश्वास, उनके वचन पर विश्वास ही नहीं दिखाई दे रहा है. It happened during the days of prophet Elisha. नबी एलीशा के दिनों में ऐसा हुआ था. Even the land of Israel suffered a lockdown. और इजराइल के देश में लॉकडाउन हुआ था. The enemy had besieged them from outside. बाहर से शत्रु ने घेर रखा था उनको. And there was famine inside. और अंदर अकाल पड़ा हुआ था. There was no food to eat. खाने के लिए कोई खाना नहीं And था. the people of Israel had resorted to eating the flesh of human beings. और इजराइल के लोग मनुष्य के मांस को खा रहे थे. When the king of Israel came to know this, जब इजराइल के राजा को ये पता चला, he tore his clothes. उसने अपने कपड़ों को फाड़ He दिए, moaned and he wept. शोक मनाया, रोने लगा. And he got across to the man of God Elisha. और एलीशा के संपर्क में आ गया. But when he came to Elisha, जब एलीशा के पास what he ये आया, heard from Elisha was something that was really baffling. जो उसने एलीशा से सुना था वो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित करने वाली It बात was थी. contrary to what he was seeing with his eyes. अपनी आंखों से जो राजा देख रहा था उसके विपरीत एलीशा ने कहा था I कुछ. want us to open our Bibles to 2 Kings chapter 7 verse 1 and 2. हम चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र को हम खोले दूसरी राजा की किताब 7वां अध्याय पहला और दूसरा वाक्य. It says here in the New King James Version, then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gates of Samaria. Verse 2, so an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? पहला वाक्य, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो. यहोवा यो कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सहा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा. तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? Further down it says, and he said, in fact you shall see it with your eyes, but you shall not eat it. अगर आगे चलकर लिखा हुआ है, उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा. I want us to understand something very important this morning. हम चाहते हैं इस सवेरे के वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम समझ ले. There are 2 angles to any problem. किसी भी समस्या के 2 दृष्टिकोण होते हैं. One is the spiritual angle, एक आत्मिक दृष्टिकोण, another is the physical angle. दूसरा स्वाभाविक या शारीरिक दृष्टिकोण. What Elisha was seeing was the spiritual angle. जो एलीशा देख रहे थे वो आत्मिक दृष्टिकोण था. What the man on whose hand king was leaning was seeing was the physical angle. और वो सरदार जिसके हाथों पर राजा तकिया करता था, वो जो देख रहा था वो स्वाभाविक दृष्टिकोण था. Also remember a spiritual truth. और ये आत्मिक सच्चाई को आप समझ लीजिएगा. Spiritual always rules the physical. आत्मिक हमेशा स्वाभाविक पर राज करती I है. repeat it again. Spiritual always rules the physical. और शारीरिक पर आत्मिक का काबू रहता है. If you want to know what is the truth is what happens in the spiritual, अगर हम और आप सत्य को जानना चाहते हैं तो सत्य जो है आत्मिक में होती है, not in the physical. शारीरिक में नहीं, It's स्वाभाविक quite में नहीं. possible in these days of lockdown. ये हो सकता है ये लॉकडाउन के दिनों में When you open the book of Bible, जब आप पवित्र शास्त्र को खोलते when हैं, you read and see, जब आप पढ़ते हैं, you will see empty number of promises there. तो आप वहां पे यहोवा के वादों को पढ़ते हैं. There is so much of life there. वहां पे कितना सारा जीवन है. But when you put on the television, लेकिन जब हम टेलीविजन को लगाते what हैं, you see, जो हम देखते हैं, when you open your newspapers, जब हम अखबारों को खोलते what हैं, you read, क्या हम पढ़ते हैं, these days when you put on the social network, इन दिनों में जब सोशल नेटवर्क में हम देखते हैं, what you tend to तो understand क्या समझते हैं? is only the confusion. गड़बड़ी है बस. Is very contrary to what you see
in the book of Bible. पवित्र शास्त्र में जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, you and I are called to put our faith in what we hear from the Lord, not in what we hear from the mouth of men. और देखिए, हमने और आपने जो है जिस बात पर विश्वास रखना है, वो बातें हैं जो परमेश्वर के मुख से आती हैं, मनुष्य के मुख से नहीं। I want us to learn at least 3 things from the life of this man on whose hand that the king leaned on. 3 बातें हम इस इंसान के जीवन से सीखेंगे, इस सरदार के जीवन से सीखेंगे। This man saw the abundance, but he could not partake of it because of his lack of faith. और देखिए, ये व्यक्ति ने बहुतायता को देखा था, लेकिन उसमें सहभागी नहीं हो पाया क्योंकि उसमें विश्वास की कमतरता I थी। pray that may not be our portion in Jesus' मेरी name. प्रार्थना ये है कि उस सरदार की तरह हमारी हालत कभी न हो, मसीह के नाम Number से। one thing that you see in the life of this man is और पहली बात जो आप इस सरदार के जीवन में देखते हैं वो that ये he है was an Israelite. कि ये इजरायली था। He was part of the covenant that God made with Abraham. ये इजराइल के वाचा में बंधा हुआ था। He had all the promises that were made to Abraham, Isaac and Jacob. और इब्राहिम, इसहाक और याकूब को जो यहोवा ने वादा किया था या वादे किए थे, उसका हकदार ये भी था। But he did not believe in those things. लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, you going to the church or being born in a Christian family automatically does not say that you have the faith. और देखिए, अगर आप मसीह परिवार में जन्मे हैं, आप जो है कलीसिया जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप विश्वास आ जाएगा। Faith is something that you need to exercise at every opportune time. और देखिए, विश्वास ऐसी बात है जिसको आपने हर मौके पर उपयोग करना है। You have to look for a way to exercise the faith. जरूरी है कि हम जो है विश्वास को हर स्तर में, हर जगह पर दर्शाएं। Even the disciples of Jesus Christ had this problem. और यीशु मसीह के शिष्यों में भी ये समस्या थी। We can see in chapter 17 of Luke 5 and 6 we can see there. लूका के 17वें अध्याय के 5वें और 6वें वाक्य में हम ये देखते They हैं। came to Jesus and confessed and said, Lord, help us with faith. और वो यीशु के पास आए और यीशु से कहने लगे कि प्रभु हमारी मदद करिए, विश्वास को लेकर तू हमारी मदद कर। Jesus said, if you have faith as small as the mustard seed, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के समान विश्वास हो, you can command this mulberry tree to be uprooted and cast into the sea, it will be so. तुम ये आज्ञा दे सकते हो, कह सकते हो इस वृक्ष से कि जड़ समेत उखाड़ दे जाए और जाकर समुद्र में अपने आप को रोप ले, तो ऐसा होगा। Remember the illustration that Jesus gave there. और वहां पे यीशु मसीह ने जो दृष्टांत को कहा उसको याद रखेगा। He could have said that even if you have a small grain of sand, if you have faith as small grain of sand, you can command this mulberry tree to be uprooted. He did not say that. वो ऐसा कह सकते थे कि तुम्हारे अंदर जो है रेत के दाने के समान अगर विश्वास हो तो तुम ये वृक्ष से कहो उखड़ जा तो उखड़ जाएगा, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। He said that if you have faith as small as mustard seed. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम्हारे अंदर अगर विश्वास एक राई के दाने के समान हो तो। A grain of sand is small, but mustard seed, though it is small, it has life, and the grain of sand does not have life. और देखिए, रेत जो रहता है उसमें कोई जीवन नहीं होता है, लेकिन अगर आप जो है राई के दाने को देखो तो उसमें जीवन होता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, what Jesus is pointing out is you need to have a growing faith, not the small faith. और जो यीशु मसीह कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप में, मुझ में एक बढ़ता हुआ विश्वास होना चाहिए। Remember the growing faith, not the small faith, not the small faith. छोटा विश्वास नहीं, लेकिन बढ़ता हुआ विश्वास। When you have a growing faith, जब हमारे में और आप में बढ़ता हुआ विश्वास you होता है, can command something to happen. It will happen so in the name of Jesus तो हम Christ. आज्ञा दे सकते हैं, कोई बात की आज्ञा दे सकते हैं होने के लिए, और वो वैसा ही होगा जैसे आपने आज्ञा दी है। Number one thing that we can see that this man was an Israelite but did not have faith in the word of God. और देखिए, पहली बात हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति था सरदार, वो एक इजरायली था, लेकिन यहोवा के वचन पर उसका कोई विश्वास नहीं था। Number two thing that you can see here, दूसरी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं that he was outright negative.
कि वो पूरी रीति से नकारात्मक था। He was a pessimist. वो नकारात्मक व्यक्ति था। Unlike optimist. और वो बिल्कुल नकारात्मक था, सकारात्मक नहीं था। An optimistic person sees a ray at the end of the tunnel and believes that he can make it to the end. और एक सकारात्मक व्यक्ति जो है एक छोटी सी किरण, आशा की किरण देखता है बोगदे के उस अंत में, तो वो विश्वास रखता है कि वो अंत तक पहुंच सकता है। But a pessimist is not like that. लेकिन एक नकारात्मक व्यक्ति ऐसा नहीं है। He gives up the ghost even if he can see in 1 feet that he has a great light there. वो हार मान जाता है अगर देखता है कि थोड़ी दूरी में प्रकाश है, तब वो हार मान जाता है। My brothers and my sisters, मेरी भाइयों मेरी बहनों, do we possess a positive mind or a negative mind? क्या हमारा मन सकारात्मक है या नकारात्मक है? Are you an optimist or a pessimist? क्या आप सकारात्मक है या नकारात्मक है? With you being an optimist or a pessimist, approach changes. Understand that first. देखिए, यदि आप सकारात्मक है या नकारात्मक है, जिस रीति से आपका दृष्टिकोण होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। I pray that the Lord may change your mindset if it is negative in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आपकी मनोस्था को बदल दे, अगर आपकी मनोस्था नकारात्मक है तो। Number 3, most importantly, तीसरी महत्वपूर्ण बात, that this man, though he was an Israelite, ये व्यक्ति इजरायली होने के बावजूद he did not know God at all. परमेश्वर को नहीं जानता था। Anybody who knows God, they know nothing is impossible to him. जो कोई यहोवा का जानता है, ये जानता है कि यहोवा के जरिए कोई बात असंभव नहीं है। The God that I serve, the God that you serve, his name is all possible. जिस परमेश्वर की सेवा हम और आप करते हैं, उनसे सारी बातें संभव है। The one who called all things into existence as though they were. जिन्होंने जो है सारी बातों को बुलाया मानो जैसे वो थे। The one who arrayed the heavens. जिसने पूरे भूमंडल को बनाया है। The one who commanded the light, let there be light, and he said, let there be light, and there was light, and darkness could not comprehend. जिसने आज्ञा देकर कहा, शब्दों से बोला और कहा कि प्रकाश हो, और वहां पे प्रकाश हुआ और अंधकार वहां पे रह नहीं पाया। Nothing is impossible to him. हमारे परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं My है। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I want to ask you today, this morning, हम आपसे पूछना चाहेंगे इस सवेरे do के you वक्त, know this God? क्या आप इस परमेश्वर को जानते If हैं? you know this God, अगर आप इस परमेश्वर को जानते and हैं, if you have the faith, अगर विश्वास है, if you believe, if you have the right mindset, अगर विश्वास है और सही मनोस्था है, you shall experience the abundance that the Lord is about to bring in your life. तो आप वो बहुतायिकता का अनुभव करेंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में लाने वाले हैं। The world may experience demotion, but you will experience promotion to his glory in the name of Jesus दुनिया Christ. भर में शायद डिमोशन हो जाए, लेकिन आपके मेरे जीवन में प्रमोशन होगा, बढ़ोतरी होगी उनकी महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम Why? से। Because God is in charge of your life. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नियंत्रण हमारे God जीवनों is पर in है। charge of our life. परमेश्वर का नियंत्रण हमारे जीवनों What you पर है। see in the spiritual is what is the truth, is the truth. जो आप आत्मिक में देखते हैं वही सत्य है, And I want you to believe that truth. और उस सत्य पर विश्वास कीजिएगा। I pray that the Lord may give us the grace to believe that truth. मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर हमको अनुग्रह दे कि हम सत्य पर विश्वास In the रखें, name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। When I was reading this particular account, जब मैं ये संदर्भ को पढ़ रहा था, I saw a little later, आगे चलकर मैंने देखा all that the man of God said came to pass. जो भी परमेश्वर के जन ने कहा वही बातें हुई। Also, as this man of God said, that this man who saw but he could not enjoy it because of his lack of faith. और जैसे उन्होंने कहा था कि ये सरदार जो है देखेगा बहुतायिकता को, लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पाएगा, वैसा ही हुआ। I pray that may not be a portion, my portion in the name of Jesus मैं Christ. प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा उस सरदार के जैसा हमारा भाग न हो, मसीह यीशु के नाम से। I believe that this particular word has ministered to you. मेरा विश्वास ये है कि वचन ने आपकी सेवकाई I की want है। us to go and kneel down before God. आइए हम परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाएंगे। Ask the Lord to open your eyes. हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे, Tell him, Lord, I want to see the spiritual angle to my problem. और आप ये कहे कि परमेश्वर जो आत्मिक दृष्टिकोण है मेरी समस्या का, वो आत्मिक दृष्टिकोण को मैं देखना चाहता Even हूँ। as he opens the spiritual eyes of you, और जैसे वो हमारे आपके आत्मिक आंखों को खोलते हैं, what you see is what you should believe. जो आप आत्मिक में देखते हैं उस पर विश्वास कीजिएगा। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।